Hello everyone, this is our fourth part of chapter 2. In this part, we are going to discuss the division of fraction. In first and second part, we discussed the addition and subtraction of fraction, and in third part, in which we discussed exercise 2b, we discussed for the multiplication of fraction, and this exercise we will discuss the division of fraction. Before we start learning division of fraction, let's recall what are reciprocals. Two fractional numbers are said to be reciprocal of each other if their product is 1. Suppose we have a rational number or fraction 3 upon 4. What is the reciprocal of 3 upon 4? That is 4 upon 3. If we multiply these two reciprocals, the product will be 1. 4 and 4 cancel out, 3 and 3 cancel out. That is equals to 1 upon 1 is equals to 1. So what are the reciprocals? Two fractions are called reciprocal of each other if their product is 1. Now we will start exercise 2c. Write down the reciprocal of question number 1. The first, write down the reciprocal of 5 upon 8. Solution. The reciprocal of 5 upon 8 is 8 upon 5. What we do, we simply replace the numerator and denominator. We put numerator on the place of denominator and denominator on the place of numerator, and thus we prepare the reciprocals of every fraction. Next, the reciprocals of 7, not reciprocals, reciprocal, that is here 1 is hidden. So the reciprocal of 7 is 1 upon 7. Similarly, reciprocal of 1 upon 12, that is 12 upon 1. There is no need to write 1. Answer, and here is the answer. And the reciprocal of 12 whole 3 upon 5, fourth, 12 whole 3 upon 5. First we will convert this mixed fraction into improper fraction. 12 5 is 60 and 3, 63 upon 5. Now reciprocal of 63 upon 5 is 5 upon 63. That is the answer. Question number 2, simplify, and the first question is 4 upon 7 divided by 9 upon 14. 4 upon 7 divided by 9 upon 14. Solution. For the division of fraction, we write the first fraction without any change, that is 4 upon 7. In next step, we convert the division sign into multiplication and put the reciprocal of second fraction. What is the reciprocal of 9 upon 14? That is 14 upon 9. Now we simply do the multiplication of fraction. We will multiply numerators to numerator, 4 into 14, and denominator to denominator, 7 into 9. Now eliminate 7 1 is 7, 7 2 is 14. That is equals to 4 2 is 8, 9 1 is 9, 8 upon 9, and here is the answer. Simply convert division into multiplication and put the reciprocal of the second fraction. Let's solve another question. Fourth, that is 9 divided by 1 upon 3. Solution. 9, we will convert division into multiplication and put the reciprocal of 1 upon 3, that is equals to 3 upon 1. There is no need to write 1. 9 3 is 27, and this is the answer. Next, question number 8, 5 whole 4 upon 7. 5 whole 4 upon 7 divided by 1 whole 3 upon 10. First we will convert this mixed fraction into improper fraction. 7 5 is 35, 4, 39 upon 7 divided by 10 is 10 and 3, 13 upon 10. That is equals to 39 upon 7 into 10 upon
13 is equals to 39 into 10 divided by 7 into 13. 13 1 is 13, 13 3 is 39 is equals to 30 upon 7. Since it is improper fraction, convert it into mixed fraction. 7 4 is 28, carry 2 और डिवाइडेड 7 वैसे ही पुट कर देंगे. सो आंसर इज 4 2 upon 7. So practice the rest question of question number 2. All are same. Question number 3. The first, divide 11 upon 24 by 7 upon 8. 11 upon 24 by 7 upon 8. Solution. 11 upon 24 we have to divide, so replace by and put the sign of division, then after write 7 upon 8 is equals to 11 upon 24. Division will be converted into multiplication and put the reciprocal of second fraction 8 upon 7. 8 1 is 8, 8 3 sorry, there will be one another step. I will multiply numerators and denominators together. That is 11 into 8, 24 into 7. 8 1 is 8 3 is, that is equals to 11 upon 21. Here's the answer. बाकी जो प्रॉब्लम्स बचे सारे वैसे ही है, सॉल्व करें खुद से. अगर कोई दिक्कत होती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं ज़रूर से रिप्लाई करूँगा. अब यहाँ से शुरू होते हैं वर्ड्स प्रॉब्लम. क्वेश्चन नंबर 4. A rope of length 13 whole 1 upon 2 meter has been divided into 9 pieces of same length. What is the length of each piece? Suppose there is a rope which is 10 meter long. If we divide this rope in 10 equal parts, what is the length of each part? Length of each part is 1 meter. So what we did, we simply divide the total length by total piece. 10 1 is 10, so length of one piece is 1 meter. We will do the same here, but we don't have the number in simple form. That is not a natural or whole number, that is fraction. Question number 4. Solution. फिर से यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखेंगे, जो भी डेटा हमें फाइंड आउट करना है वो हमेशा ही हम राइट साइड शिफ्ट करेंगे. सो यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच रोप. हमें लेंथ फाइंड आउट करना है, लेंथ को हम शिफ्ट करेंगे राइट साइड. सो स्टेटमेंट हो गया, सिंस द लेंथ ऑफ nine pieces of ropes is equals to 13 whole 1 upon 2 meter. Therefore the length of one piece of rope is equals to, तो जाहिर सी बात है जो हमें 9 के लेंथ है 13 होल 1.2 मीटर, एक तो एक का इससे कम होगा लेंथ. तो जब भी हमें वैल्यू को कम करना होता है तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे डिवाइड कर देते हैं. तो हम डिवाइड कर देंगे इस वैल्यू को 9 से. अगर वही वैल्यू इंक्रीज होता तो हम मल्टीप्लाई करते, लेकिन हमने प्रीवियस सेक्शन में एक्सरसाइज 2b में किया था. दैट इज इक्वल्स टू, अब हम सिंपली डिवीजन करेंगे, कन्वर्ट कर लेते हैं इसको. 13 2 26 एंड 1 27 अपॉन 2 मीटर डिवाइडेड बाई 9. That is equals to 27 upon 2 meter. Division will be converted into multiplication 1 upon 9. That is equals to, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मीटर. 9 1 9, 9 3 27. दैट इज इक्वल्स टू 3 upon 2 मीटर. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको कन्वर्ट कर लेंगे मिक्स में. 2 1 2,
1 बचा और डिवाइडेड 2 वैसे ही पुट कर देंगे। जिन्हें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स में कन्वर्ट करने में दिक्कत होती है वो हमसे कमेंट सेक्शन में पूछे। बस मैंने प्रीवियस एक्सरसाइजेज में उनको भी एक्सप्लेन किया है। क्वेश्चन नंबर 5, 18 बॉक्सेस ऑफ नेल्स Question number 5, 18 boxes of nails were equally and their total weight is 49 whole 1/2 kg. How much does each box weigh? So हमें फाइंड आउट करना है एक बॉक्स का वेट, हमें ये फाइंड आउट करना है वेट। तो वेट को हम शिफ्ट करेंगे राइट साइड, स्टेटमेंट तैयार करेंगे। सिंस द वेट ऑफ 18 nail boxes is equals to 49 whole 1/2 kg. Therefore the weight of one nail box is equals to 49 होल 1/2 डिवाइडेड बाई 18, डिवीजन करेंगे और आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, बाय सेलिंग ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ 6 रुपीज 6 होल 3/4 पर ऑरेंज अ मैन गेट्स 378 रुपीज। हाउ मेनी ऑरेंजेस डज ही सेल? हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पे नंबर ऑफ ऑरेंजेस। तो नंबर को हम क्या करेंगे साइड में लिखेंगे, राइट साइड में स्टेटमेंट तैयार करेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है रुपीज 6 होल 3 पर ऑरेंज। सिंस नंबर ऑफ ऑरेंजेस कैन बी सेल फॉर रुपीज 6 होल 3/4 इज इक्वल्स टू 1। Therefore number of oranges that can be sold for rupees 378 rupees is equals to 378 divided by रुपीज 6 होल 3/4। कैलकुलेशन करेंगे। फाइनली स्टेटमेंट लिखने के बाद 378 को डिवाइड करेंगे 6 होल 3/4 से, आंसर आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 378। डिवीजन कन्वर्ट होगा मल्टीप्लिकेशन में इसका रेसिप्रोकल हमने पुट किया। एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, 6 4 24 एंड 3 27/4 दैट इज इक्वल टू 378 इंटू 4/27। 3 9 जा 3 1 जा 2 जा 6 जा 3 3 जा 9 3 4 जा 3 2 जा 3 1 जा 3 1 जा 3 4 जा 14 4 जा 56। he had sold 46 ऑरेंजेस। स्टेटमेंट वीडियो को बैक करें और सुन के स्टेटमेंट तैयार करें और फिर कैलकुलेशन करें खुद से। कोई कैलकुलेशन में दिक्कत होती तो वो भी कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंगोज आर सोल्ड at rupees 43 whole 1/2 per kg. What is the weight of mangoes available for 326 whole 1/4? सेम वैसे जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया था। क्वेश्चन नंबर 6। अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। सॉल्यूशन। क्वेश्चन सुने, Vikas can run over a distance of 20 whole 2/3 km in 7 whole 3/4 hours on foot. How many km per hour does he walk? इसको भी दो तरीके से बना सकते हैं। डिस्टेंस दिया हुआ है और ट्रैवल करने में जितना टाइम लगा है वो दिया हुआ है। हमें फाइंड आउट करना है 1 घंटे में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे इसको यूनिटरी मेथड से ही सॉल्व करेंगे। देखिए सॉल्यूशन सिंस फिर से चेक कर लें। हमें फाइंड आउट क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट हाउ मेनी किलोमीटर पर आवर, यानी ट्रैवल डिस्टेंस। 1 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। तो डिस्टेंस को हमें शिफ्ट करना है राइट साइड। सिंस द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 7 whole 3/4 hours is equals to 20 whole 2/3 kilometer, किलोमीटर। हमें फाइंड आउट करना है 1 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। देयरफॉर द डिस्टेंस ट्रैवल इन 1 hour इज इक्वल्स टू, यहाँ से बात है कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा तो वैल्यू कम करने के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। सो 20 होल 2/3
को हम डिवाइड कर देंगे 7/3/4 से, और जो वैल्यू आएगा वो हो गया हमारा किलोमीटर में, क्योंकि हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं। दैट इज इक्वल्स टू, पहले इसको कन्वर्ट करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। 23 से 60 एंड 2 62/3 डिवाइडेड बाई 7 4 से 28 एंड 3 31/4 किलोमीटर। दैट इज इक्वल्स टू 62/3 डिवीजन कन्वर्ट कर दिया हमने मल्टीप्लिकेशन में, और रेसिप्रोकल पुट कर दिया हमने। दैट इज 4/31, 31 से 62 टू टाइम्स में एलिमिनेट हो गया। दैट इज इक्वल्स टू 4 2 से 8/3 किलोमीटर। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में मिक्स में कन्वर्ट कर दें, 3 2 जा 6, 2 कैरी हुआ यहाँ पे, 2 होल 2/3 किलोमीटर। आंसर व्हाट्स प्रॉब्लम है, तो आंसर भी स्टेटमेंट में ही लिखेंगे। देयरफॉर he travels 2 whole 2/3 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 9, जो सिमिलर क्वेश्चन हैं उनको बस मैं बोल के ही एक्सप्लेन कर दूंगा, आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे। प्रीति bought 8 whole 1/2 kg of sugar for rupees 242 whole 1/4, find the price of sugar per kg। यानी 8 whole 1/2 kg 8.5 किलो का कॉस्ट दिया हुआ है, हमें 1 kg का फाइंड आउट करना है। तो हमें फाइंड आउट करना है कॉस्ट ना, तो कॉस्ट यानी प्राइस को हम शिफ्ट करेंगे राइट साइड। स्टेटमेंट कैसे तैयार करेंगे, सिंस द कॉस्ट ऑफ 8 whole 1/2 kg ऑफ शुगर इज इक्वल्स टू 242 whole 1/4, therefore the cost of 1 kg of sugar is 242 whole 1/4 divided by 8 whole 1/2। सिंप्लीफाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, if the cost of a notebook is rupees 27 whole 3/4, how many notebooks can be purchased for rupees 249 whole 3/4। तो इस बार हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ नोटबुक्स। तो स्टेटमेंट ऐसे तैयार करेंगे, सिंस नंबर ऑफ नोटबुक्स परचेस्ड फॉर 1 rupee is equals to, since the number of notebooks purchased for rupees 27 whole 3/4 is equals to 1, क्योंकि एक नोटबुक का कॉस्ट है 27 whole 3/4 रुपीज़। therefore number of notebooks purchased for rupees 1 is equals to 1 divided by 27 whole 3/4। therefore number of notebooks purchased for rupees 249 whole 3/4 is equals to, इस 249 होल 3/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस वाले वैल्यू में। मैं सॉल्व कर देता हूँ इस वीडियो को, इस क्वेश्चन को। डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं करेंगे, आंसर 249 होल 3/4 को डिवाइड करने पे आ जाएगा 27 होल 3/4 से, लेकिन डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं लिखेंगे, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, सॉल्यूशन। Since number of notebooks purchased for rupee 27 whole 3/4 is equals to 1, यानी 27 whole 3/4 में एक नोटबुक मिल रहा है। देयरफॉर तो पहले हम ये फाइंड आउट करते हैं, नंबर ऑफ नोटबुक्स परचेस्ड फॉर ₹1, 1 रुपये में कितना मिलेगा। जाहिर सी बात है प्राइस कम हो गया तो सामान भी कम मिलेगा, तो कम करने के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो 1 में हम डिवाइड कर देंगे किससे, ₹27 होल 3/4 से, दैट इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई रुपीज़। यूनिट हम अभी कैरी नहीं करते हैं, कन्वर्ट करते हैं इसको, कितना हो गई 7 4 ज़ा 28, 8 कैरी 2, 4 2 ज़ा 8, 8 इंटू 10, फिर इसमें 3 भी ऐड करना है, ये हो गया 111/4, दैट इज इक्वल्स टू 1 इंटू 111, इसका रेसिप्रोकल पुट करेंगे 4/111, दैट इज इक्वल्स टू 4/111, यानी इतना नोटबुक मिलने वाला है 1 रुपये में।
एक्चुअली प्रैक्टिकली वैसा पॉसिबल है नहीं, लेकिन कैलकुलेशन में हमें ये स्टेप्स फॉलो करने। देयरफॉर नंबर ऑफ नोटबुक परचेस्ड फॉर रुपीज़ क्या कितना करा था, ये क्वेश्चन पूछ रहा था कि 249.3/4 यानी 249 3/4 रुपीज़ में कितने नोटबुक्स मिलेंगे। तो हमें पता है 1 रुपीज़ में इतने मिल रहे हैं। तो जब हमें 1 का पता रहता है, अब जितने भी क्या पूछे हम सिंपली मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट कर देते हैं। दैट इज इक्वल्स टू 4.11 मल्टीप्लाइड बाई 249 होल 3/4 दैट इज इक्वल्स टू 4/111 इंटू, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करें, 4 9 ज़ा 36, 6 कैरी 3, 4 4 ज़ा 16 3, 19 9 कैरी 1, 4 2 ज़ा 8 एंड 1 9। इसमें ऐड करना हमें 3 भी, तो ये हो गया 999 डिवाइडेड बाई डिवाइडेड हो गया 4, 11 से ही चला गया, सॉरी 111 से ये 9 टाइम्स में कैंसिल आउट और 4 से 4 कैंसिल आउट, आंसर आ गया हमारा 9, यानी 9 नोटबुक्स खरीदे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11, एट अ चैरिटी शो द प्राइस ऑफ each ticket was rupees 32 whole 1/2. The total amount collected by a boy was rupees 877 whole 1/2. How many tickets were sold by him? सेम वैसे ही एक टिकट का कॉस्ट दिया हुआ है, दैट इज रुपीज़ 32 होल 1/2 और टोटल जो अमाउंट कलेक्ट हुए हैं वो है 877 होल 1/2। कितने टिकट्स बिके? सेम ऐसे स्टेटमेंट तैयार करेंगे। सिंस नंबर ऑफ टिकट्स sold for rupees 32 whole 1/2 is equals to 1, एक ही टिकट बिका है। therefore number of tickets sold for rupees 1 is equals to 1 में डिवाइड कर देंगे 32 whole 1/2 से और फिर उसके बाद से सिंपलेस्ट फॉर्म मिलाएंगे उस वैल्यू को। therefore number of tickets sold for rupees 877 whole 1/2 is equals to, इस वैल्यू में 877 होल 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा से सेम वैसे ही जैसे क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व होता है, बस डेटास चेंज है वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 12, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स अरेंज्ड अ पिकनिक, each student contributed रुपीज़ 261 होल 1/2, द टोटल कंट्रीब्यूशन वाज 2876 होल 1/2, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द ग्रुप। तो अभी तक हमने जो भी देखा क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 ये सारे सिमिलर क्वेश्चन हैं, तो सॉल्व करें सारे को। 13, 24 लीटर्स ऑफ मिल्क वाज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमॉन्ग ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ अ हॉस्टल, each student got 2/5 लीटर ऑफ मिल्क, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द हॉस्टल। टोटल 24 लीटर मिल्क था और सबको बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट किया गया। अगर एक स्टूडेंट को 2/5 लीटर मिल्क मिला है तो टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे, नंबर ऑफ स्टूडेंट फाइंड आउट करना है। तो हम राइट साइड में शिफ्ट करेंगे, ठीक है। सिंस 2/5 लीटर ऑफ मिल्क, तो स्टेटमेंट ऐसे तैयार करेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट who got 2/5 liter of milk is equals to 1. Therefore, number of students who get 1 liter of milk is equals to 2/5 into सॉल्व करता हूँ इसको। सिंपली आंसर आ जाएगा 24 को डिवाइड कर देंगे 2/5 से, लेकिन फिर से हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशंस करेंगे। देखें सबको आसान लगता होगा कि हम डायरेक्ट डिवाइड करके आंसर निकाल लें, लेकिन बेहतर होगा कि हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन करें, इस तरह से गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, नंबर ऑफ स्टूडेंट फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन, सिंस number of students got 2/5 liter of milk is equals to 1 दिया हुआ है, एक बच्चे का 2/5 लीटर मिल रहा है, therefore number of students got 1 liter milk is equals to 1
डिवाइडेड बाई 2/5 दैट इज इक्वल्स टू 1. डिवीजन कन्वर्ट कर दिया हमने मल्टीप्लिकेशन में और ये हो गया 5/2 इज इक्वल्स टू 5/2 यानी 5/2 स्टूडेंट्स है 5.5 बच्चे प्रैक्टिकली ये सब पॉसिबल नहीं है. देयरफॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु गॉट हमने 1 लीटर के लिए निकाल लिया ना. अब जितने भी लीटर का पूछे हम फाइंड आउट कर सकते हैं. 24 लीटर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गॉट 24 लीटर ऑफ मिल्क ऑफ छूटा हुआ है ऑफ मिल्क इज इक्वल्स टू अब 5/2 में मल्टीप्लाई कर देंगे 24 से. 2 1 ज़ा 12 टाइम्स में कैंसिल हो 12 5 ज़ा 60. सो देयर वर टोटल 60 स्टूडेंट्स. क्वेश्चन नंबर 14. A bucket contains 20 whole 1/4 liter of water. A small jug has capacity of 3/4 liter. How many times the jug has to be filled with water from the bucket to get emptied? समझो क्वेश्चन को डायग्राम से. Here is a bucket. Here is एक बाल्टी. ठीक. इस बाल्टी में पानी भरा हुआ है और उस पानी को कंप्लीटली फिल है वाटर इसमें और उस पानी को एक छोटे से मग से निकाला जा रहा है. बाल्टी में टोटल पानी है 20 होल 1/4 लीटर और ये मग एक बार में उसमें से पानी निकाल रहा है 3/4 लीटर. तो पूछ रहा है कितनी बार में ये बाल्टी को पूरी तरह से खाली कर देगा. यानी एक बार में हमने पानी निकाला 3/4 निकला, दूसरी बार में 3/4 और निकला, इस तरह से कितनी बार. तो सिंपली स्टेटमेंट लिखेंगे ऐसे. सॉल्व कर देता हूँ. क्वेश्चन नंबर 14. सिंस इसको इन्वर्टिंग मेथड से नहीं सॉल्व करेंगे. सिंस द कैपेसिटी ऑफ द बकेट इज इक्वल्स टू 20 होल 1/4 लीटर. सिंस द कैपेसिटी ऑफ द मग और जग, यहाँ पे जग यूज कर रहे हैं तो जग ही लिखते हैं, इज इक्वल्स टू 3/4 लीटर. हाउ मेनी टाइम्स द जग हैज़ टू बी फिल्ड विद वाटर फ्रॉम द बकेट टू गेट इट एम्प्टी. देयरफॉर नंबर ऑफ टाइम्स द जग has filled with water to empty the bucket is equals to. सिंपली बड़े वाले वैल्यू को छोटे वाले वैल्यू से डिवाइड कर देंगे. 20 होल 1/4 लीटर डिवाइडेड बाई 3/4 लीटर दैट इज इक्वल्स टू. कन्वर्ट कर लें इसको पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में. 24 से 80 and 1 81/4 डिवीजन कन्वर्ट हो गया मल्टीप्लिकेशन में 4/3. 4 से 4 कैंसिल और 1 टाइम्स में 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 6 3 7 ज़ा 21 दैट इज इक्वल्स टू 27. यानी 27 टाइम्स में वो बकेट खाली हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 15. The product of two numbers is 15 whole 5/6. One of the number is 6 whole 1/3. Find the other. दो नंबर्स का प्रोडक्ट दिया हुआ है
और एक नंबर दिया उसमें से, दूसरा नंबर क्या था वो फाइंड आउट करना है, हमें नहीं पता, हम उसे मान लेंगे x। क्वेश्चन नंबर 15, सॉल्यूशन। Since the product of two numbers is equals to 15 whole 5 upon 6, one of the number is 6 whole 1 upon 3, one number is equals to 6 whole 1 upon 3, second number यानी another number नहीं पता, मान लेते हैं x, ब्रैकेट में हम मेंशन कर देंगे लेट, ये हमने माना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या था कि इन दोनों का प्रोडक्ट आया है इतना, दैट इज 6 होल 1 अपॉन 3 मल्टीप्लाइड बाई x इज इक्वल्स टू 15 होल 5 अपॉन 6, दैट इज इक्वल्स टू 6 इज 18 and 1 19 अपॉन 3 मल्टीप्लाइड बाई x इज इक्वल्स टू 15 6 90 and 5 95 अपॉन 6, दैट इज इक्वल्स टू, अब x का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, इस साइड 95 अपॉन 6 को वैसे ही रखते हैं, 19 अपॉन 3 को शिफ्ट करते हैं राइट साइड, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई करें, इसे डाके डिवाइड हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू डिवाइडेड बाई 19 अपॉन 3, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 95 अपॉन 6, डिवीजन कन्वर्ट किया हमने मल्टीप्लिकेशन में, उसका रेसिप्रोकल हमने पुट कर दिया 3 अपॉन 19, देख लेते हैं कुछ कैंसिल हो रहा है, 3 1 जा 3 2 जा 19 1 जा 19 5 जा, दैट इज इक्वल्स टू 5 अपॉन 2, इम प्रॉपर फ्रैक्शन है, x को मिक्स में कन्वर्ट कर ले, डिवाइड तो 2 वैसे लिख लें, 2 2 जा 4, 1 कैरी हुआ था वो आ गया यहाँ पे आंसर। अगर आंसर चेक करना है कि सही है कि नहीं तो पुट करें यहाँ पे 6 होल 1 अपॉन 3 मल्टीप्लाइड बाई x, यानी x का वैल्यू कितना है 2 होल 1 अपॉन 2, करते हैं मल्टीप्लिकेशन, 6 इज 18 and 1 19 अपॉन 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 2 is 4 and 1 5 अपॉन 2, दैट इज इक्वल्स टू 19 5 is 3 2 is 6, उसको मिक्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, डिवाइडेड 6 हमारा वैसे ही हो गया, डिवाइड करते हैं 6 1 जा 6 3 करे हो यहाँ से, 6 5 जा 30, कितना बचे यहाँ पे 5 आ गया, 15 होल 5 अपॉन 6, Question number 16. By what number should 9 whole 4.5 be multiplied to get? हमें नहीं पता तो मान लेते हैं, एग्जाम में ऐसे ही नहीं लिखना, हमें नहीं पता, लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी is equals to x. According to question, by what number should 9 whole 4.5 be multiplied, 9 whole 4.5 be multiplied, तो मान लेते हैं 9 whole 4.5 को हम x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्रोडक्ट कितना चाहिए था 42, तैयार करते हैं इक्वेशन ऑलरेडी तैयार हो चुका है, बैलेंस करना है, 9 5 is 45 and 4 49 अपॉन 5 मल्टीप्लाइड बाई x इज इक्वल्स टू 42, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 42 49 अपॉन 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई करें, इसे डाके डिवाइड हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू डिवाइडेड बाई 49 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 42, डिवीजन कन्वर्ट कर दिया हमने मल्टीप्लिकेशन में, उसका रेसिप्रोकल 5 अपॉन 49, 7 7 जा 7 6 जा, दैट इज इक्वल्स टू 6 5 से 30 अपॉन 7 इज इक्वल्स टू, कन्वर्ट कर लेते हैं इसको मिक्स में, डिवाइडर वैसे लिख लिया हमने, 7 4 जा 28, 2 कैरी हुआ आंसर। फिर से अगर आंसर चेक करना है तो एक्स का वैल्यू यहाँ पे पुट करके मल्टीप्लाई करें और चेक कर लें,
लास्ट, बाई वॉट नंबर शुड 6 होल 2/9 बी डिवाइड टू गेट 4 होल 2/3? हमें नहीं पता, फिर से मान लेंगे वो जो रिक्वायर्ड नंबर है x है, और इस क्वेश्चन को टिक कर लेंगे। थोड़े से में कैलकुलेशन में बच्चे गलती करते हैं। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 17। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बाय व्हाट नंबर शुड 6 होल 2/9 बी डिवाइडेड, मानते हैं x से डिवाइड करें इसको कि हमें मिल जाता 4 होल 2/3। बैलेंस करते हैं इक्वेशन को, पहले कन्वर्ट कर लें। 9 6 जा 54, 2 56 x इक्वल्स टू 4 होल, इसको भी कन्वर्ट करेंगे। 3 4 जा 12 एंड 2 14/3। अब सारी यही गलती करेंगे कि 56/9 डिवाइड कर रहे हैं x में, गलत है, इसको भेज के उधर मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर गलत हो जाएगा। ध्यान से देखें यहाँ पे, अगर हम लिखते हैं यहाँ पे 16 डिवाइडेड बाई 4, इसका मतलब क्या हुआ, 16 4 को डिवाइड कर रहे हैं, नहीं 4 16 में डिवाइड कर रहे हैं, यानी ये है 16/4 इस फॉर्म में, यानी x यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर फॉर्म है, x यहाँ पे क्या है, डिवाइजर है, ये डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पे, तो डिवाइजर को हम इधर लाकर शिफ्ट करेंगे, यानी जो ये डिनोमिनेटर फॉर्म में है यहाँ पे x, उसको पहले न्यूमरेटर फॉर्म में लाएं ताकि हमारा वैल्यू निकले x का। सो 56/9 x यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, RHS में आके ये मल्टीप्लाई करेगा। अब x न्यूमरेटर फॉर्म में आ गया, अब x का वैल्यू निकालते हैं। 56/9 है LHS में, अब 14/3 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, इसे हटा के ये क्या करेगा, डिवाइड करेगा, इक्वल्स टू x से, दैट इज इक्वल्स टू 56/9 मल्टीप्लाइड बाई रेसिप्रोकल हो गया 3/14, 14 4 जा 56, 3 1 जा 3 3 जा, ये रहा हमारा x का वैल्यू, यानी आया कितना, ये 4/3 इज इक्वल्स टू x, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 4/3। मिक्स में कन्वर्ट कर लेंगे आंसर। सो इस तरह से हमारा एक्सरसाइज 2C कंप्लीट हुआ और इसी के साथ चैप्टर 2 भी कंप्लीट हो गया। 2D ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि 2A 2B और 2C के कॉन्सेप्ट पे बेसिस है, खुद से सॉल्व करें। अगर कोई दिक्कत होती है कमेंट सेक्शन में पूछें, अगर इसके लिए भी वीडियोस चाहिए तो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।